बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठान ली है। तो कितने मंदिरों के नीचे बौद्ध स्थान मिलेगा, तैयार होगा? नहीं बल्कि मर्डर है। গতকাল ৭৫তম সংবিধান দিবস ছিল। সংবিধান আমাদের আত্মা, সংবিধান আমাদের ভাবনা, ভরসা, বিশ্বাস। কিন্তু আজ দেশের প্রতিটি কোণে সংবিধান ক্ষুণ্ণ হতে দেখা যাচ্ছে। গণতন্ত্রের মূল ভিত সংবিধান, সেই সংবিধানের অবমাননা কোথাও না কোথাও গণতন্ত্রের উপর সংকট নিয়ে আসছে। ভারতীয় জনতা পার্টির কিছু নেতৃত্বদের চিন্তাধারায় ২০১৪ সালের পরে দেশ স্বাধীন হলেও বাস্তবে ২০১৪ সালের পর থেকেই সংবিধান প্রতিটি দিকে ক্ষুণ্ণ হতে দেখা যাচ্ছে। মণিপুর প্রায় ২ বছর ধরে চলছে। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মণিপুরের শান্তির জন্য টু শব্দ খরচ করতে রাজি নয়, বরঞ্চ পুরো দেশকে মণিপুর বানাতে উদ্যোগী হয়েছেন। কিছুদিন আগেই আমরা দেখেছি উত্তরপ্রদেশের বহরাইচের হিংসা, আজ দেখছি সেই উত্তরপ্রদেশেরই সম্বলের প্রশাসনের ন্যক্কারজনক ভূমিকায় সাম্প্রদায়িক হিংসা, যার বলি হয়েছে পাঁচটি তরতাজা প্রাণ। কেউ উড়িয়ে দিতে পারবে সেই ছোট বাচ্চাদের বাবাকে? समय मारे गए लोगों को देर रात दफना दिया गया। वीडियो जो है ना, কেউ ফিরে দিতে পারবে সেই বৃদ্ধ বাবার সন্তানকে? उनने मतलब ऐसा गोली रोक के 2 गोली मारी, एक के बजाय 2 मारी, समझो। एक तो हमारी और एक हमारी, 2 गोली मारी, समझो। रोक के मारी है, क्योंकि घर को आ रही है ना, रोक के मारी। मैं मुलजिम को चाहता हूँ, मुलजिम चाहिए मुझे, पैसा नहीं चाहिए मुझे, अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, और 4 से 3 रह गए, मगर मुझे मुलजिम चाहिए। পারবে না। হয়েছে কি, গত 19শে নভেম্বর সম্বলের ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে একটি মামলা দায়ের হয়। সম্বলের জামে মসজিদ আসলে হিন্দুদের হরিহর মন্দির, বাবর হরিহর মন্দির দখল করে মসজিদ বানিয়েছে, এরকমটাই তারা দাবি জানিয়েছে। হিন্দু গ্রুপের দাবি সেখানে হিন্দু দেবদেবীর কিছু চিহ্ন রয়েছে, স্থাপত্য রয়েছে। এভাবে যদি প্রতিটি মসজিদে মন্দির খোঁজা হয় তাহলে প্রতিটি মন্দিরে বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনাগার খোঁজা শুরু হয়ে যাবে। এই উকিল সাহেব কি বলেছে শুনুন। आप इस तरह के मामले कैसे वो करेंगे? अगर आप इतनी छूट देंगे तो कितने मंदिरों के नीचे बौद्ध स्थान मिलेगा, तैयार होगा? सर्वे कराने के लिए हैं ये जज तैयार देश में सर्वे करने के लिए हर एप्लीकेशन पे? अगर आप मस्जिदों का सर्वे करवा सकते हो तो इस देश की जुडिशरी को तैयार रहना चाहिए। दुनिया भर के मुकदमे आने वाले हैं इस देश में। अगर इस पैटर्न को आपने खुला छोड़ा तो प्लेस ऑफ वर्सेस एक्ट की ऐसी की तैसी की तो आप क्या करना चाह रहे हैं देश के अंदर? बहराइच में जो हुआ था उसमें भी बीजेपी के लोगों का नाम सामने आए थे, तो क्या लगता है इसमें भी किसी इसी तरीके की चीजें हो सकती हैं, जिस तरीके अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव को दबाने भाई जिसकी जिम्मेदारी सरकार चलाने की, जिसको जिम्मेदारी मिली हो इस वक्त, उस पे आएगा क्वेश्चन? क्यों नहीं आएगा? সেই দিনেই কোর্টে শুনানি হয় এবং সার্ভের আদেশ দেয় এবং উক্ত দিনেই সন্ধ্যা 5 ঘটিকায় সার্ভে টিম পৌঁছায় এবং 2 ঘন্টা ধরে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় সার্ভে সম্পূর্ণ করে। যদিও মুসলিম গ্রুপের দাবি আগাম কোনো সূচনা দেওয়া হয়নি, সার্ভে সম্পূর্ণ হওয়ার পর একটি অর্ডার কপি তাদের হাতে দেওয়া হয়। মামলার সূত্রপাত হয় 24শে নভেম্বর সকাল 6 ঘটিকায় পুনরায় সার্ভে টিম পৌঁছায় উক্ত মসজিদে। মুসলিম গ্রুপের দাবি সেদিনের সার্ভে নিয়ে আগাম কোনো সূচনা দেওয়া হয়নি। এই জায়গায় কোর্ট এবং প্রশাসনের উপর সোজাসুজি প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। কোর্ট এরকম সেন্সিটিভ মামলায় কেন তো তাড়াহুড়ো করলো? প্রশাসন কেন দুই পক্ষের সঙ্গেই আলোচনা করেনি? প্রশাসন কি করে ভিড় আটকানোর জন্য আগাম কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি? সব থেকে বড় প্রশ্ন, সার্ভে টিমের সঙ্গে এই বহিরাগত দল কেনই বা প্রশাসন এরকম ধর্মীয় উস্কানিমূলক স্লোগান এখানে অ্যালাউ করলো? আপনারা সেই ভিডিও দেখুন। এই সমস্ত প্রশ্ন দেখলে এটা আরো সোজা হয়ে যাবে যে প্রশ্ন অবশ্যই আসবে, তাহলে কি প্রশাসন এরকম হিংসায় মদত দিয়েছিল? ঠিক যেরকম অভিযোগ উঠেছিল বহরাইচ ঘটনায়। যদিও এই পুলিশ আধিকারিক অন্যরকম কথা বলছে, শুনুন পুলিশ আধিকারিক কি বলেছে। आत्मरक्षा का अधिकार है, हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हमारा परिवार नहीं है। अगर इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे। এই পুলিশ আধিকারিকের কথা শুনে আমি যেটা বলবো, অবশ্যই আপনার পরিবার আছে, অবশ্যই আপনার সন্তান আছে, আপনার আত্মরক্ষার অধিকার আছে। তাহলে কি যাদের মেরেছেন তাদের ঘর পরিবার সন্তান ছিল না? এ ব্যাপারে সম্বলের সাংসদ জিয়াউর রহমান কি বলেছে আমি শোনাবো। घटी है वो साजिश के तहत घटी है
और हमें अफसोस है कि इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और उनको टारगेट करके उनके साथ में जो जुल्म ज्यादती की जा रही है वो अफसोसजनक है। इस प्रदेश और देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट में 1991 में बन गया था, उसके बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा और हमें अफसोस है कि पार्लियामेंट ने अभी तक उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं मांग करूंगा, सदन में भी इस मसले को उठाऊंगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील करना चाहता हूं कि इसमें संज्ञान ले और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके, उनके परिवार वालों को, और आने वाले समय के अंदर कोई संविधान के और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। लेकिन पुलिस कह रही है कि वहाँ पर जो है सो कानून के अनुसार से काम हो रहा था, कोर्ट के आदेश के बाद ही काम हुआ है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कानून के अनुसार अगर काम हो रहा था तो मुझे बताएं कि जब एक सर्वे और विद इन सेम डे जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन सर्वे करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी? क्या कोर्ट का ऐसा आदेश था कि सेम डे आप विद इन 1 आवर के अंदर आपको सर्वे करना है? इतनी इमरजेंसी क्या थी कि आप विद इन 1 वीक भी सर्वे कर सकते थे, 2-3 डेज कर सकते थे। लेकिन एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद डीएम, एसपी और सब कमिश्नर जो कि सर्वे कमिश्नर थे, उन्होंने कहा हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। हमने पूछा कुछ करना हो तो अभी फाइनल कर लो, बोले नहीं कंप्लीट हो चुका, हम सिर्फ रिपोर्ट जमा करेंगे। दूसरा सर्वे करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा सर्वे अगर वो करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लेते, उसके बाद सर्वे करते। अगर अपनी तानाशाही पे वो लोग अड़े हुए थे फिर भी सर्वे करना था तो एक समन्वय समिति बनाते, लोगों को आपस में मिलकर के उसके बाद कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था। एक मॉब की शक्ल में जय श्री राम के नारे लगा करके आप सर्वे करने जा रहे हो, लोगों के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं? वहाँ साजिश थी पहले से, साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके, और मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसके अंदर दोषी हैं। 3 हत्या का मुकदमा दर्ज और जेल की सलाखों के बीच में जाना। গত 25 তারিখ সমাজবাদী পার্টি অধ্যক্ষ অখিলেশ যাদব সমস্ত সাংসদ সহযোগে লোকসভার সভাপতি মাননীয় ওম বিড়লা সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সংসদে এই বিষয় নিয়ে, এই সম্বলের বিষয় নিয়ে আলোচনার দাবি জানায়। কি বলেছে অখিলেশ যাদব আমি শোনাবো। ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहाँ पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं সাংসদ আসাউদ্দিন সাহেব জানিয়েছেন সম্বলের মসজিদ 200 থেকে 250 বছরের পুরনো মসজিদ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जहाँ मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज्यादा है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ
जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर। तो संभल में वहां के सांसद पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? अब सर जेपीसी में आप लोगों ने समय मांगा है, क्या कहेंगे? जी, जैसा अभी आपने हमारे डेलीगेशन तरफ से बोला गया है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। मगर स्पीकर साहब ने बड़ी इत्मीनान से हमारी पूरी जितने मेंबर्स 11 नॉन बीजेपी एमपीज गए थे उनकी बात को सुना। वो बोले कि इसके ऊपर कंसिडर करेंगे और हमको उम्मीद है कि ऑनरेबल जी শুনুন সুপ্রিম কোর্টের উকিল কি বলেছে এই ব্যাপারে। देखिए जो संभल का मामला है, मेरी नजर में ये बहुत ही सोची समझी घिनौनी राजनीति के तहत ये सारा मामला है और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि अदालत भी इस सारे षड्यंत्र में शामिल है। যেমন আদানির দুর্নীতি মামলা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী চুপ, ঠিক যেমন মণিপুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী চুপ, ঠিক তেমনই সম্বলে হয়ে যাওয়া হিংসা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী চুপ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চুপ। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা শুনবো রাহুল গান্ধী কি বলেছে। উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রতিক বিতর্কে রাজ্য সরকারের পক্ষপাতিত্ব এবং তাড়াহুড়ো মনোভাব অত্যন্ত দুঃখজনক। যারা সহিংসতা ও গুলিবর্ষণে তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে তাদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের কথা না শুনে প্রশাসনের দ্বারা গৃহীত সংবেদনশীল পদক্ষেপ পরিস্থিতি আরো খারাপ করে এবং বহু লোকের মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করে, যার জন্য বিজেপি সরকার সরাসরি দায়ী। হিন্দু মুসলিম সমাজের মধ্যে ফাটল ও বৈষম্য সৃষ্টির জন্য বিজেপির ক্ষমতার ব্যবহার রাষ্ট্র বা দেশের স্বার্থে নয়। আমি সর্বোচ্চ আদালতকে এই বিষয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হস্তক্ষেপ এবং ন্যায় বিচার করার জন্য অনুরোধ করছি। আমার আবেদন শান্তি ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রাখা, ভারত যাতে সাম্প্রদায়িকতা থেকে ও ঘৃণা নয় ঐক্য ও সংবিধানের পথে এগিয়ে যায় তা নিশ্চিত করতে আমাদের সকলকে একত্রিত হতে হবে। প্রশ্ন, দেশের প্রধানমন্ত্রী কে? রাহুল গান্ধী? প্রশ্ন থাকবেই, আর কতদিন এভাবে প্রধানমন্ত্রী চুপ থাকবে? প্রশ্ন থাকবেই, আর কতদিন এভাবে বিজেপির সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক ভাষণের দ্বারা, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দ্বারা দেশের প্রতিটি কোণে গাজা মণিপুর হয়ে উঠবে? আর কতদিন গণতন্ত্রের শাসনকে উল্লঙ্ঘন করে বিজেপি সরকারের প্রশাসন মনমানি করবে? আর কতদিন এভাবে সাম্প্রদায়িক হিংসায় ভারত জর্জরিত হবে? আমি বন্ধু বলছি, সাম্প্রদায়িক হিংসায় শুধুমাত্র একটা ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, সাম্প্রদায়িক হিংসায় পুরো সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পুরো দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এই ধরনের হিংসা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করুন।